Hello everyone, good morning. I hope you all are doing well. Okay, welcome to Current Event Explainers channel, an initiative run by UPSC aspirants community. We are a team of 3 to 4 people who have given prelims, mains as well as interview of UPSC. We daily discuss the Hindu very elaborately on our channel. Okay, so let's begin. Today's date is 8th Feb 2024. Okay, तो जैसा कि हम डेली करते हैं, वी विल डायरेक्टली स्विच ऑन टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ दिस न्यूज़पेपर. So in that context, we are going to switch on to science section. Okay, so we will switch on to science section. Just a minute. Yeah. So let's directly switch on to science section. ठीक है, आज जो साइंस सेक्शन में आर्टिकल आया है वो है कि न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन्स. ठीक है, दिस इज अ नेम ऑफ अ सेटअप. पूरा नाम है ये न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन्स. हेल्प कैसे करता है न्यू एंटीबायोटिक के इन्वेंशन में. फाइन. तो ये आर्टिकल थोड़ा सा टेक्निकल है. ठीक है, तो इस पे एक वीडियो बनाया है, वो आपको देखना है. उसके बाद मैं इस आर्टिकल को समराइज कर दूंगा. फाइन. तो जस्ट वॉच अ वीडियो. ठीक है, वीडियो प्ले होने जा रहा है एंड यू हैव टू अटेंड द होल सेशन टिल द एंड. सेशन को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है. ठीक है, आपको पूरा हिंदू स्टोरी के फॉर्म में क्रिएट करवा देंगे. क्लियर? वॉच द वीडियो. Have you ever wondered why the world is so desperate for new antibiotics? The answer lies in our own actions. Over the years, both overuse and misuse of antibiotics have led to a disturbing rise in antibiotic resistance. This resistance poses a significant threat to global health, as it can render even the simplest of infections untreatable. The last structural class of antibiotics was reported in the year 2000, marking the start of a decades-long wait for a new one. The quest for new antibiotics has been a roller coaster ride of highs and lows, punctuated by moments of hope and despair. The wait for a new class of antibiotics has been long and fraught with challenges, but today we stand on the brink of a breakthrough. How did a neural network, a concept rooted in artificial intelligence, discover a new antibiotic? This question might sound like science fiction, but it's the reality of our present scientific advancements. The neural network, through deep learning approaches, embarked on a fascinating journey to unearth a new class of antibiotics. This network was trained, much like a diligent student, to analyze and understand the intricate world of chemical structures. It learned to predict their antibiotic potential, a task that requires immense computational power and understanding. The process is akin to finding a needle in a haystack, and yet the AI was able to pinpoint a promising candidate. But what makes this even more extraordinary is the network's ability to explain its discovery. It provided a detailed account of its analytical process, illuminating the path it took to this groundbreaking revelation. This is not just a triumph of AI over a complex task, but it's also a significant leap forward in drug discovery. This achievement is akin to the AI taking us by the hand and leading us through its thought process, showing us not just the what, but also the how. It's a glimpse into a future where AI could become an essential partner in scientific endeavors. The neural network's ability to explain this discovery is a significant leap forward in drug discovery. This breakthrough is more than just a new antibiotic. It's a game changer. Imagine, if you will, a key that not only unlocks a door, but also re-engineers the lock, making it more efficient, more secure. That's what this breakthrough represents for the world of drug discovery. It's a paradigm shift, a revolution in the making. For decades, we've been locked in a dangerous dance with antibiotic resistance. As we've used antibiotics to fight off infections, bacteria have adapted, evolved, and become resistant. This has led to a concerning rise in superbugs, bacteria that are resistant to multiple antibiotics. But with this breakthrough, we're not just finding a new weapon, we're changing the battleground. The neural network approach to drug discovery has the potential to streamline the process, to make it more targeted, more efficient. It's like having a map that can lead us directly to the treasure rather than wandering around in the dark hoping to stumble upon it. But it doesn't stop there. This breakthrough
could also open the door to discovering other new drugs. Imagine a world where the process of finding a cure for a disease is as simple as inputting the right data into a computer program. It's a world where the fight against disease is not just reactive, but proactive. In the world of medicine, this is more than a discovery. It's a beacon of hope for a future where antibiotics remain a potent weapon against disease. ठीक है, आपने वीडियो वॉच की, क्लियर। अब इस आर्टिकल को मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। तो ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि चैट जीपीटी जो अपने आप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, ठीक है, उनके और एंटीबायोटिक के बीच में क्या कनेक्शन है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिसिनल वर्ल्ड, ठीक है, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो हिस्ट्री गोज बैक टू 1944, ठीक है। 1944 में साइंटिस्ट ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को प्रपोज किया था, ठीक है। उसको डीप लर्निंग वगैरह कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। और सेम ईयर में ही बायोलॉजिस्ट ने एक डिस्कवरी की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दोज हु आर गिविंग यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक, अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। फर्स्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, फाइन। तो उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों का सेम ईयर में डिस्कवरी हुई, फाइन। टुडे कंडीशन इज कि वी हैव डीपर कनेक्शन बिटवीन डीप लर्निंग एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कैसे? अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में नेचर में साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि एक न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक हमने इन्वेंट की है विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमने एक नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक को इन्वेंट किया है या डिस्कवर किया है, फाइन। उसके बाद साइंटिस्ट का क्या कहना है, देखो, डीप लर्निंग, एक्सप्लेन योरसेल्फ, फाइन, दिस इज टेक्निकल, कोई जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं हाउ दिस डीप लर्निंग हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, कैसे हेल्प किया, ठीक है। डीप लर्निंग एक्सप्लेन योरसेल्फ, मतलब ये जो टर्म है ना, न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन, दिस इज अ होल मशीन इन इटसेल्फ, ठीक है। इस मशीन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाउ इट हेल्प्ड इन द इन्वेंशन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक क्लास, लेट्स डिस्कस, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना, वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स से बनाए जाते हैं, जैसे हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स है ना, इन द सेम वे दीज आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर क्रिएटेड, ठीक है। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, जैसे ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, ठीक है, तो दीज आर एल्गोरिथम्स, ठीक है, दैट रिसीव इनपुट, परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड रिलाई द आउटपुट, मतलब ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। यहां पे आपने इनपुट दिया, ठीक है, इसने कंप्यूटेशन की, मतलब इनपुट को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखा दिया, बस इतना ही है ये न्यूरल नेटवर्क का पूरा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स थे, फाइन। अब डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उसमें 3 लेयर ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, 3 लेयर होती हैं, ठीक है। यूजिंग दीज न्यूरल नेटवर्क्स प्रिडिक्शंस करवाई जाती हैं इनसे, ठीक है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से प्रिडिक्शंस करवाई जाती हैं, कैसे? 2 स्टेप में, पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग में क्या होता है, मतलब यहां समझो आप, जैसे ये डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है, इसको आपको ट्रेनिंग देनी है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, आपने शाहरुख खान की फोटोग्राफ दिखाई इसको, ठीक है, एंड यू शोड इट अगेन एंड अगेन, इस मशीन को, डीप लर्निंग को आपने ये शाहरुख खान की फोटो बार बार दिखाई, ठीक है, 10-15 बार दिखाई, एंड यू टोल्ड इट कि दिस इज शाहरुख खान, दिस इज शाहरुख खान, दिस इज शाहरुख खान। उसके बाद ये हो गया ट्रेनिंग, ठीक है, ये हो गया ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग है, ठीक है। अब आप इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग आप ऐसे करेंगे कि फिर आप इससे पूछेंगे, ठीक है, आप उससे पूछेंगे किसी भी इंसान की फोटो दिखा के कि वेदर ही इज शाहरुख खान और नॉट। अगर मशीन ने मना कर दिया कि ही इज नॉट अ शाहरुख खान और वो आपकी फोटो सही है, आपने शाहरुख खान की जगह मनोज वाजपेयी को दिखाया था, मतलब वो टेस्ट पास कर गया। फिर आप एक शाहरुख खान की दूसरी फोटो दिखाएंगे उसको, अगर वो पहचान ले मशीन के हाँ दिस इज शाहरुख खान, और वो आपने सही में फोटो शाहरुख खान की दिखाई हो और मशीन पहचान भी ले, तो मतलब वो टेस्ट में पास हो गई है, फाइन। यही यहां पे दिया गया है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्लियर मशीन की। उसके बाद क्या हुआ, एंटीबायोटिक में कैसे हेल्प किया इसने, देखो, उसके बाद एक नई स्टडी हुई, ठीक है। नई स्टडी में क्या निकला कि जो नेटवर्क था ना, ये जो नेटवर्क था ना, इसको क्या किया गया, इसको ट्रेनिंग के दरमियान फोटोग्राफ्स दिखाई गई और बाद में इसको ऐसे मॉडिफाई किया गया कि उस ये फोटोग्राफ पहचानने के साथ साथ उस फोटोग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी दे दे, मतलब अ डीप लर्निंग मॉडल प्रिडिक्टिंग एन इमेज एज दैट ऑफ अ कैट, ठीक है, एंड देन एक्सप्लेनिंग विच पिक्सल्स इन द इमेज
हेल्प्ड द मॉडल टू मेक दिस प्रिडिक्शन। मतलब आपने इसको ट्रेनिंग दी थी शाहरुख खान की फोटोग्राफ से, ठीक है, इस टेस्टिंग के दरमियान इसने पहचान भी लिया, ठीक है। अब ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है मशीन, ये क्या करती है, ये आपको शाहरुख खान की फोटोग्राफ टेस्टिंग के दरमियान पहचान के भी देती है और साथ में ये भी बताती है कि उसने ये शाहरुख खान की फोटोग्राफ्स कैसे पहचानी। मतलब मशीन एक्सप्लेन्स यू कि हाउ इट कम टू अ कंक्लूजन दैट द फोटोग्राफ्स विच यू आर शोइंग इन द टेस्टिंग प्रोसेस इज अ शाहरुख खान। मतलब मशीन आपको एक्सप्लेन भी करती है कि वो कैसे फोटोग्राफ पहचान रही है। मान लो उसने हेयर्स का पैटर्न देखा, कुछ पिक्सेल्स का पैटर्न्स देखा फोटोग्राफ में, या फेस का पैटर्न देखा, कुछ भी पैटर्न देखा ना, वो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि इस फोटोग्राफ पहचानने में हमने ये वाला पैटर्न अप्लाई किया था। मतलब मशीन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, एक्सप्लेनिंग यू कि विच पिक्सेल्स इन द इमेज हेल्प्ड द मॉडल। मॉडल कौन सा? डीप लर्निंग मॉडल, ठीक है। डीप लर्निंग मॉडल हेल्प्ड टू मेक द प्रिडिक्शन। मेक द प्रिडिक्शन मतलब मेक द प्रिडिक्शन वेदर इट इज अ कैट और नॉट, ठीक है, क्लियर है। फिर इसी की हेल्प ली गई है एंटीबायोटिक बनाने में। तो ये जो मशीन है ना डीप लर्निंग की, जो फोटो के पहचानने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करती है कि उसने पहचाना कैसे, उसी को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन्स, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन्स, फाइन। वो यहां पे मेंशन्ड है, इफ डीप लर्निंग कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन what substructures may contribute to this antibiotic activity, then scientists can synthesize and test compounds with these substructures faster. Fine, clear है। एंटीबायोटिक्स कैसे पहचान रही हैं, न्यू एंटीबायोटिक्स। ये जो डीप लर्निंग एक्सप्लेन्स वाला जो सिस्टम है ना, जो मैंने अभी बताया, वो क्या करता है, आप इसको ट्रेनिंग दो पुरानी एंटीबायोटिक्स दिखा के कि दीज आर एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फिर आप इसकी टेस्टिंग करो, ठीक है, टेस्टिंग के दरमियान वो आपको बताएगी कि हाँ ये एंटीबायोटिक है। फिर वो एक्सप्लेन भी करेगी कि उसने एंटीबायोटिक में ऐसे कौन से सबस्ट्रक्चर देखे, कौन सी आइडेंटिफाई की चीजें, जिससे वो बता पा रही है कि दिस इज अ एंटीबायोटिक, ठीक है। उसी एक्सप्लेनेशन की हेल्प लेके, उसी सबस्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन की हेल्प लेके साइंटिस्ट क्या करते हैं, नई एंटीबायोटिक, ठीक है, नई एंटीबायोटिक का इन्वेंशन करते हैं। फाइन, क्लियर है आपको आर्टिकल, स्टोरी क्लियर है, हाउ डीप लर्निंग एक्सप्लेन्स आइडेंटिफाई न्यू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। बाकी ये टेक्निकल है, नो नीड टू स्टडी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है हमारे पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या किसी भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें बस इतना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करती है, ठीक है, बायोलॉजिस्ट को एंटीबायोटिक पहचानने में। फाइन, इट्स क्लियर, डन, स्टोरी भी क्लियर है आर्टिकल की, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। फाइन, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज जो आर्टिकल आया है, इट्स अबाउट, जस्ट अ मिनट, इट्स अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन की है, ठीक है। फाइन, एक वीडियो प्ले होने जा रहा है, ठीक है, जस्ट वॉच द वीडियो विच विल समराइज द होल आर्टिकल, पूरे आर्टिकल को समराइज करेगा, वो वीडियो आपको देखना है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर पाओगे। फाइन, जस्ट वॉच द वीडियो। Ever wonder why the First Minister of Ireland, hailing from Sinn Féin, is a big deal? This political shift is significant due to Sinn Féin's historical role in advocating for Irish unity. The end of a 2-year political deadlock has been marked by this change in leadership. Northern Ireland operates under a power-sharing agreement, balancing power between nationalists or Republicans and loyalists or unionists. This shift in power marks a significant change in the political landscape of Ireland. To understand the current situation, we must delve into the past, specifically a violent period known as the Troubles. From the late 60s to the late 90s, Northern Ireland was embroiled in a gruesome civil war, a 30-year span of sectarian violence and conflict. This was a war between two factions, the Republicans, who sought Irish unity, and the Unionists, who desired to remain part of the UK. Over this period, more than 3,500 lives were tragically lost. The roots of this conflict were deep-seated, hinged on differences of identity, religion, and political beliefs. The impact was devastating, leaving Northern Ireland in a state of unrest, fear, and division. It was a period that would indelibly mark the region, shaping its political, social, and cultural landscape for years to come. The Troubles was a dark time in Northern Ireland's history, one that left deep scars and shaped the political climate we see today. The Good Friday Agreement of 1998 marked the end of the Troubles
and started a new chapter in Northern Ireland's history. This unique peace treaty was a beacon of hope, making strides towards a harmonious future by addressing the demands of both the nationalists or Republicans and the loyalists or Unionists. It was a delicate dance of diplomacy, balancing the interests of two factions who had been at odds for over 30 years. One of the pivotal provisions of this agreement was the opportunity for Northern Ireland to seek reunification with Ireland. This was subject to a popular vote, a referendum, ensuring the decision would be in the hands of the people it affected most. The Good Friday Agreement is more than a peace treaty. It is a symbol of the power of negotiation, illustrating how compromise can lead to resolution even in the most entrenched conflicts. It is a testament to the power of negotiation and compromise in resolving even the most entrenched conflicts. To answer our initial question, the leadership of Sinn Féin symbolizes a shift in political power, a testament to the changing face of Northern Ireland. The haunting legacy of the Troubles remains. ठीक है, आपने वीडियो देखा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इन अ वेरी सिंपल फॉर्म कि ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी। देखो, जो फर्स्ट मिनिस्टर है ना आयरलैंड की, शी इज द फर्स्ट मिनिस्टर। फर्स्ट मिनिस्टर एक पोस्ट है आयरलैंड में। ठीक है, वो कौन सी पार्टी से आई है? वो सिन फेन पार्टी से आई है। ठीक है, कितने साल के बाद? 2 साल के पॉलिटिकल डेडलॉक के बाद वो आई है। ठीक है, व्हाट वर द ट्रबल्स? ट्रबल्स क्या थे? What are the main provision of गुड फ्राइडे एग्रीमेंट? ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैंने अभी पढ़ा, बट अभी समझ में आएगा, पूरी स्टोरी क्लियर होगी। फाइन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? 3 फरवरी को, ठीक है, अभी इसी वाले महीने 3 फरवरी को प्रो आयरिश यूनिटी पॉलिटिशियन, प्रो आयरिश यूनिटी की आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टी की? देखो, पहले तो मैप क्लियर कर देता हूं मैं आपका। ठीक है, ये पूरा मैप है। ठीक है, ये आया, देखो यहां पे देखो आप, ये पूरा मैप है। ठीक है, दिस इज अ मैप। फाइन। ये पूरा इंग्लैंड और आयरलैंड का मैप है। क्लियर है? ये पूरा आपका आयरलैंड है। ठीक है, इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज नॉर्थ आयरलैंड एंड दिस इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, 1921 के पहले, ठीक है, आयरलैंड को 1921 में फ्रीडम मिली। ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था एज देयर कॉलोनी। फाइन। 1921 से पहले क्या था? एक उल्स्टर नाम की प्रोविंस थी। ठीक है, और मुंस्टर नाम की प्रोविंस थी, लेंस्टर नाम की प्रोविंस थी, मतलब अलग अलग प्रोविंस में, और कनॉट अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ था आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद 1921 के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद आयरलैंड को जोड़ा गया एक न्यू नेशन फॉर्म करने के लिए, जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा गया। उसमें से एक पार्ट उल्स्टर प्रोविंस का, जिसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, विच वॉज नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ आयरलैंड रिपब्लिक। ठीक है, उनको था कि वो यूके के साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसलिए उन्होंने अपना एक अलग नाम रख लिया, नॉर्दर्न आयरलैंड। फाइन। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि इंग्लैंड, ये इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, ये 3, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 3 कंट्रीज हैं जो ब्रिटेन बनाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन, इंग्लैंड वाले पार्ट को ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ लो आप, तो उसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसके अपने प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी। ठीक है, मतलब यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। मतलब ये पूरा पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, और ब्रिटेन का क्या पार्ट है? केवल ये मेनलैंड वाला, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स वाला। फाइन, क्लियर है? ठीक है, मैपिंग क्लियर हुई आपको? ठीक है, इंग्लैंड सिर्फ इतने पार्ट को कहते हैं, रेड वाले को। स्कॉटलैंड इट इज सेपरेट स्टेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री बट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। फाइन, इसलिए उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। अलग अलग किंगडम्स यूनाइट होकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दरलैंड। फाइन, और ब्रिटेन किसको कहते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को। फाइन, ठीक है, क्लियर है? लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन।
मैपिंग क्लियर है, ठीक है। 1921 के पहले आयरलैंड कैसा था, 1922 के बाद कैसा हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद, क्लियर है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही चीज़ बताई गई है, जो पॉलिटिकल पार्टी ना प्रो आयरिश यूनिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी का ये आइडियोलॉजी है कि उसको पूरे आयरलैंड को एक सेपरेट रिपब्लिक बनाना है, मतलब उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी जुड़ा होना चाहिए, फाइन। तो उसकी पॉलिटिशियन है मिशेल ओ नील, ये उनकी पॉलिटिशियन जो सिन फेन पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। वो फर्स्ट मिनिस्टर बनी है नॉर्दर्न आयरलैंड की आफ्टर द अपोजिशन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, ठीक है। अपोजिशन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी कौन सी है, जो प्रो यूके है, मतलब डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी चाहती है कि वो यूके के साथ ही रहे नॉर्दर्न आयरलैंड, फाइन, ठीक है। उनकी लेडी कौन सी हैं, ये हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एमा लिटिल पेंगली, ठीक है, एमा लिटिल पेंगली, ठीक है। तो ये लोग फर्स्ट मिनिस्टर बने आफ्टर अ 2 लॉन्ग ईयर ऑफ पॉलिटिकल डेडलॉक, ठीक है। व्हाट लेड टू पॉलिटिकल डेडलॉक, डिस्कस करते हैं हम। बैकग्राउंड आपको क्लियर है। देखो, नॉर्दर्न आयरलैंड गवर्न होता है किससे, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट नोन एज कॉन्सेशनलिज्म। नॉर्दर्न आयरलैंड गवर्न होता है एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के, जिसको कहते हैं कॉन्सेशनलिज्म, ठीक है। कॉन्सेशनलिज्म सिर्फ गवर्न होता है लेड डाउन इन गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में, ये एग्रीमेंट हुआ था, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि पावर जो है ना नॉर्दर्न आयरलैंड में वो शेयर होगी इक्वली बिटवीन द सेक्टेरियन ग्रुप्स इन द स्टेट, ठीक है, बिटवीन प्रो आयरिश यूनिटी फैक्शन कॉल्ड नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन्स एंड प्रो यूके फैक्शन विच आर कॉल्ड लॉयलिस्ट और यूनियनिस्ट, ठीक है। अब यार देखो, स्टोरी क्लियर, यहां समझो आप, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। इसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चाहती है कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में मिल जाए, जो कि भी मिला हुआ है, ठीक है। उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, प्रो यूके फैक्शन और लॉयलिस्ट और यूनियनिस्ट, ठीक है। और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी है कि हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिल जाएं, ठीक है। वो पार्टी कौन सी है, वो पार्टी है प्रो आयरिश यूनिटी फैक्शन, जिसको हम नेशनलिस्ट या रिपब्लिक्स बोलते हैं, क्लियर है आपको, आइडियोलॉजी क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टी क्लियर है, फाइन। तो इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में 1998 में एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बेसिस पे ये कहा गया है कि दोनों पार्टी पावर इक्वली होल्ड करेंगी आयरलैंड में, ठीक है, अलग अलग तरीके से पावर होल्ड नहीं करेंगी, फाइन। तो जो सिन फेन है ना, वो लार्जेस्ट नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब प्रो आयरिश की फैक्शन की पार्टी है, ठीक है। तो उसकी पार्टी ने इलेक्शन विन कर लिया था 2022 में, यहाँ देखो आप, ठीक है, 2022 में इलेक्शन विन किया प्रो आयरिश वाली पार्टी ने 29% वोट शेयर के साथ, और जो प्रो यूके थी उसने इलेक्शन हार लिया 21% के साथ वोट के साथ, ठीक है। हाउएवर अ गवर्नमेंट वाज नॉट फॉर्म्ड। देखो यार, इक्वली पावर कैसे शेयर होती है, इक्वली पावर शेयर ऐसे होती है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में 2 पोस्ट बनाई गई हैं, एक फर्स्ट मिनिस्टर की, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, सॉरी, यू सी हियर, एक फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट है, उसके बाद एक डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट है। तो जो पार्टी जीती है ना लार्जेस्ट वोट शेयर के साथ, उसका एक मेंबर फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पे बिठाया जाता है, और जो पार्टी हारी है इलेक्शन, उसका एक मेंबर डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पे बिठाया जाता है। मतलब ये रेड कोट वाली डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठी है, और ये कौन सी पार्टी से हैं, ये प्रो यूके पार्टी से हैं, जिसने इलेक्शन हार लिया था, 21% ही वोट मिले थे, ठीक है। और ये ब्लैक कोट वाली हैं प्रो आयरिश पार्टी से, ठीक है, जो फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पे हैं। और एक चीज़ और समझ लो आप कि फर्स्ट मिनिस्टर और डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर, इन दोनों पोस्ट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इनकी पावर्स सेम है, बस नाम और डिजिग्नेशन का डिफरेंस है, बट पावर आर सेम, फाइन, क्लियर है कि पावर कैसे सेम बांटी जाती है, फाइन, सॉरी। उसके बाद 2022 में इलेक्शन हार गई, ठीक है। हाउएवर गवर्नमेंट वाज नॉट फॉर्म्ड एज, जो डीयूपी है ना, डीयूपी मतलब जो प्रो यूके पॉलिटिकल पार्टी है, उसने वॉकआउट कर दिया था आयरलैंड की पार्लियामेंट से, बिकॉज रीजन क्या था, इट ऑब्जेक्टेड न न्यू बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन ब्रिटेन एंड आइलैंड ऑफ आयरलैंड। मतलब कुछ बॉर्डर कंट्रोल, न्यू बॉर्डर कंट्रोल रूल्स आ गए थे, उसके अपोजिशन में ये पार्टी वॉकआउट कर गई थी आयरलैंड के पार्लियामेंट से, फाइन। अब ये न्यू बॉर्डर रूल्स क्या थे, देखो, यूके ने एग्जिट कर दिया था यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना, वो एक अकेली प्रोविंस बची थी जो लैंड बॉर्डर शेयर करती थी यूरोपियन यूनियन की कंट्री रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए आप, यूके ने जस्ट अ मिनट, यूके ने एग्जिट किया, ठीक है, यूके ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन वाला जो इकोनॉमिक कोलिजन है वो, ठीक है, वो मतलब छोड़ दिया, ठीक है। मतलब
जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और ये जो पूरा कलर्ड पार्ट है ये यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंडर है। तो ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रही थी, एक नॉन यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री है वो, ठीक है। तो इसी के चलते यूके और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्रेश रूल्स बनाए जिसको कहते हैं हम यहाँ पे देखो आप, जस्ट अ मिनट, जिसको हम कहते हैं विंडसर फ्रेमवर्क, ठीक है। विंडसर फ्रेमवर्क के तहत नए रूल्स बनाए गए जिसमें यह कहा गया कि जो भी नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर पे गुड्स आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो दो भागों में बांट के जाएंगे। एक ग्रीन लेन में जाएंगे गुड्स जिनकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, और वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जाएंगे, फाइन, ठीक है। और कुछ जाएंगे रेड लेन में, ठीक है, जिनको चेक्स एंड कंप्लाइंस के साथ वेरीफाई करके यूके के नॉर्दर्न आयरलैंड में भेजा जाएगा, फाइन, क्लियर है। देखो क्या सीन हुआ था, जस्ट अ मिनट, लुक हियर। यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, तो यहाँ से जो ट्रेड के गुड्स आएंगे ना रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पे, इनमें एक गुड्स जाएंगे यूके की तरफ रेड लेन में, ठीक है। रेड लेन में वो जाएंगे तो उनका चेक्स वगैरह होगा, और एक गुड्स जाएंगे ग्रीन लेन की वे से जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जाएंगे, जिनका चेक्स एंड कंप्लाइंस वगैरह नहीं ज़्यादा वेरीफाई हो की जाएगी, फाइन, ठीक है। आफ्टर द एश्योरेंस फ्रॉम द यूके ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड्स प्लेस इन इंटरनल मार्केट, यूपी हैज एग्रीड टू रिटर्न टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूके ने प्रोविंस छोड़ा और ये कह दिया था कि भाई न्यू रूल्स फॉलो होंगे बॉर्डर में गुड्स वगैरह चेकिंग के, जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के तहत किए जाएंगे, ठीक है। और वो सब गुड्स चेक करके ही, मतलब पहले क्या था, पहले ये था, मतलब यूके ने जब यूरोपियन यूनियन छोड़ा, ठीक है, उसके बाद जो कंसेंसस बनी वो ये थी कि गुड्स जो भी आएंगे इस नॉर्दर्न आयरलैंड वाले पार्ट पे, इस पूरे पार्ट पे, तो उनको चेक्स एंड कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, फाइन। बट इसको नॉर्दर्न आयरलैंड ने खारिज किया, ठीक है, और उन्होंने कह दिया कि हम पॉलिटिकल डेडलॉक पे पहुंच रहे हैं, हम 2 साल तक गवर्नमेंट ही नहीं बनाएंगे। अब इस पॉलिटिकल डेडलॉक को कैसे खत्म किया गया, वो ऐसे खत्म किया गया कि जो गुड्स रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए आए हैं वो ग्रीन लेन से जाएंगे, और जो गुड्स नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए आए हैं उन वो रेड लेन से जाएंगे, और वो चेक वगैरह होके जाएंगे, फाइन। तो उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड की गवर्नमेंट मान गई और पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हो गया, फाइन, इट्स क्लियर। उसके बाद हिस्ट्री दी गई है नॉर्दर्न आयरलैंड कैसे बना। 1968 से 1998 तक के बीच में एक सिविल वॉर चला था, किनके बीच में, प्रो आयरिश और प्रो यूके पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जिसमें 3000 लोग मारे गए। इसी का नाम दिया गया था द ट्रबल्स, ठीक है। फिर इस सिविल वॉर में रिलीजियस एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो गया था। कैसे इन्वॉल्व हो गया था, रिपब्लिकन्स जो थे, जो प्रो आयरिश थे वो कैथोलिक थे, और जो प्रो यूके थे वो प्रोटेस्टेंट थे, तो भाई वहाँ भी रिफ्ट हो गई। उसके बाद 1609 में किंग जेम्स वन, उन्होंने क्या किया, पॉलिसी ऑफ माइग्रेशन शुरू कर दी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लोगों को लाने लगे, कहाँ, उल्स्टर में। उल्स्टर प्रोविंस कहाँ पे थी, यहाँ पे। तो यूके, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये उल्स्टर प्रोविंस थी। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वगैरह से वो माइग्रेशन के थ्रू लोगों को लाने लगे ताकि वो प्लांटेशन में उनसे काम करवा सके, फाइन। फिर आयरलैंड इंग्लैंड के कॉलोनियल कंट्रोल में था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनियल इंग्लिश रूल के लिए आयरलैंड के लोगों में, ठीक है, हेट पैदा हुई। कब हुई, 1845 में, जब 1 मिलियन लोग आयरलैंड के मारे गए डिसीज और स्टारवेशन और फाइमाइन के कारण। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान ही आयरलैंड ने हथियार उठा लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, और एक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी बनाई, ठीक है। उस आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने एक ब्लडी वॉर लड़ा और इंडिपेंडेंस ली, किससे, इंग्लैंड से 1921 में। मतलब आयरलैंड 1921 के बाद इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, ठीक है, इंग्लैंड के कॉलोनियल रूल से बाहर आ गया था, ठीक है। फिर 1921 के बाद आयरलैंड को 2 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि भाई कुछ लोग थे जो प्रो यूके थे, जिनको अलग नहीं होना था इंग्लैंड से। तो जो लोग प्रो यूके थे ना, उनके लिए नॉर्दर्न आयरलैंड की कंट्री अलग से बना दी गई इस वाले आयरलैंड में पूरे में, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये वो हैं जो प्रो आयरिश, मतलब जिनको आयरलैंड पूरा एक कंट्री के तौर पे चाहिए। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग हैं ना, दे वांट टू बी विथ यूके। तो 1921 के बाद ही उनके लिए अलग कंट्री या एक अलग स्टेट बना दिया गया, जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ओके, 1921 में इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है, आयरलैंड को यूके से, फाइन। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट इज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। देखो उसके बाद ये नॉर्दर्न आयरलैंड बना दिया गया था। आपको पता है ना कि 1921 में जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसमें से प्रो यूनियनिस्ट, जो प्रो यूके वाले थे ना,
उनके लिए एक अदर सी कंट्री बनाई गई जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, अलग से स्टेट, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड तो बन गया, लेकिन इसमें भी अभी पीस नहीं आई थी। इसमें क्या था कि जो माइनॉरिटी में थे ना, माइनॉरिटी में थे आयरिश रिपब्लिकन्स, ठीक है, जो कि प्रो आयरिश थे। नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रो आयरिश लोग भी थे जिनको हम कहते हैं, ठीक है, रिपब्लिकन्स, ठीक है। तो वो माइनॉरिटी में थे, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, ठीक है। उनके साथ जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो 1960s में इन्होंने एक अपनी रिपब्लिकन आर्मी बनाई और वायलेंस के लिए स्टार्ट हो गए, मतलब वायलेंस के लिए आर्म्स एंड एम्यूनेशन इकट्ठा किया और वायलेंस करना स्टार्ट किया जो माइनॉरिटी में थे, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, ठीक है। तो इसके रिटेलिएशन में, ठीक है, इसके रिटेलिएशन में जो प्रो यूके वाला ग्रुप था ना, उसने भी पैरामिलिट्री फोर्स बनाई और अपने आर्म्स वगैरह स्टार्ट कर दिया। मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में फिर एक वॉर टाइप की सिचुएशन बन गई जिसमें माइनॉरिटी ने भी अपने हथियार उठाए और प्रो यूके वाली कम्युनिटी ने भी अपने हथियार उठाए। फाइन फाइन। तो ये ट्रबल बहुत बढ़ गया, तो इसको पेरिस तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने हस्तक्षेप की, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी ने इसको पीस तक पहुंचाने के लिए दोनों यूनियनिस्ट और रिपब्लिकन्स में पीस समझौता करवाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वायलेंस कंटिन्यूड, फिर भी वायलेंस चलती रही। फिर 1972 में एक इंसिडेंट जिसको हम ब्लडी संडे कहते हैं, ध्यान से सुनना इसको, एक इंसिडेंट 1972 में हुआ जिसका नाम ब्लडी संडे है। ब्रिटिश आर्मी तो आई थी पीस करवाने, लेकिन उसने गलती से 13 लोगों पे गोली चला दी जो कि अनआर्म्ड सिविलियन थे, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड में ब्रिटिश आर्मी ने 13 लोगों पे गोली चला दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो वायलेंस थी इस इंसिडेंट के बाद, ब्लडी संडे के बाद, ये जो वायलेंस थी ये यूके तक फैल गई, लंदन वगैरह में भी अटैक वगैरह होने लगे। फिर ये वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टिट फॉर टैट वायलेंस स्टार्ट हो गई माइनॉरिटी रिपब्लिकन्स के बीच में और यूनियनिस्ट के बीच में नॉर्दर्न आयरलैंड में, ठीक है। ये 1980s तक हुआ, ठीक है। उसके बाद IRA, ठीक है, IRA ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसको सिन फेन कहते हैं, ठीक है, और उन्होंने पॉलिटिकली, ठीक है, पार्ट लेना स्टार्ट किया नॉर्दर्न आयरलैंड में और वो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में आ गए। फाइन, ठीक है, ठीक है, क्लियर आपको सिन फेन कैसे बना। उसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए। फिर आफ्टर दिस दे एग्रीड टू अ सीज फायर, ठीक है। दोनों पार्टी यूनियनिस्ट और जो प्रो आयरिश थी, ठीक है, दे एग्रीड टू सीज फायर पीस टॉक्स, ठीक है। और सीज फायर में ये डिसाइड हुआ कि जो IRA एंड यूनियनिस्ट है, ठीक है, उन्होंने तो एक समय के लिए अपने आर्म्स वगैरह एंटायरली गिव अप करने के लिए रेफ्यूज किया, बट यूके और यूएस ने कोशिश की ये सीज फायर और टॉक्स को मेंटेन करने की। फाइन। तो उसमें क्या हुआ, 1998 में 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ बेलाफेस्ट में, जो कि 30 ईयर ओल्ड नॉर्दर्न आयरलैंड की सिविल वॉर को उसने खत्म किया। और ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या था, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत ही ये कहा गया कि दोनों पावर्स, ठीक है, दोनों जो ग्रुप्स हैं प्रो यूके और प्रो आयरिश, वो आपस में पावर शेयर करेंगे। कैसे पावर शेयर करेंगे, 2 पोस्ट बनाएंगे, फर्स्ट मिनिस्टर और डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक है। तो दोनों पे जो पार्टी इलेक्शन जीत रही है उसका फर्स्ट मिनिस्टर कैंडिडेट बैठाया जाएगा फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पे, और जो नहीं जीत रही है उसको डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट पे, ठीक है। बट दोनों पोस्ट की पावर सेम ही है। फाइन, ये था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो 1998 में हुआ, क्लियर है, ठीक है, जिसने 30 साल चलते हुए नॉर्दर्न आयरलैंड के सिविल वॉर को खत्म किया, ठीक है। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है, मैंने समझा दिया आपको कि पावर स्ट्रक्चर बनाया गया दोनों के बीच में, फर्स्ट मिनिस्टर और सेकंड मिनिस्टर की पोस्ट देके, और दोनों शेयर करेंगे। फाइन, स्टोरी क्लियर है आपको आर्टिकल की, ठीक है, वीडियो भी देखी आपने, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड आर्टिकल ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। जो सेकंड आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में वो है स्ट्राइक ऑफ फाइन बैलेंस हैव जस्ट अ सिविल कोड। ये आर्टिकल, ठीक है, फरवरी 7 को आया था, जब देखो सॉरी ये आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि फरवरी 7 को उत्तराखंड ने पास कर दिया UCC, ठीक है, UCC पास कर दिया, उसी बारे में ये आर्टिकल है। एंड वी हैव डिस्कस्ड वेरी एलैबोरेटली अबाउट UCC इन आवर पास्ट, आई थिंक 2-3 डेज बैक, द हिंदू एनालिसिस डिस्कशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टाइमलाइन के साथ, 5-10 मिनट का डिस्कशन हमने है, उस डिस्कशन को देख लेना जाके लिंक पे क्लिक करके। फाइन, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट एंड इट्स नॉट वर्थ द टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एडिटोरियल पे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इज कंप्लीटेड, लेट्स कम टू द एडिटोरियल। एडिटोरियल में जो एक आर्टिकल है वो है डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, रिसेंटली क्या हुआ, मद्रास हाईकोर्ट ने हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के केस में, ठीक है, उस केस में क्या कह दिया है, उसमें ये कह दिया उन्होंने कि डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट 2000, ठीक है। ये हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट दी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना एक एक्ट ऑफ ऑफेंस नहीं है सेक्शन 67B IT एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई डाउनलोड करके अगर अपनी प्राइवेट में देख रहा है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक
ठीक है, उसी पे ये आईपीएस रिफॉर्मर है, इन्होंने अपनी टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है कि देखो, पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की थी, ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट में, ये कहा था कि सेक्शन 14(1) ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 और सेक्शन 67(b) ऑफ आईटी एक्ट, ये दोनों चीज़ें लगती हैं इस व्यक्ति पे जो कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख रहा था ऑन हिज मोबाइल फोन ऑन द रोड साइड एट नाइट। ठीक है, ये चार्जेस लगा के पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और कोर्ट में पेश किया। ठीक है, कोर्ट में भी बताया कि पॉक्सो एक्ट लगाया हमने और सेक्शन 67(b) आईटी एक्ट का लगाया है, जिसपे जो इंसान पकड़ा गया था, ठीक है, कहाँ पे पकड़ा गया था, जो इंसान पकड़ा गया था पोर्नोग्राफी वॉच करते हुए मोबाइल में नाइट में रोड साइड पे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, सेक्शन 67(b) आईटी एक्ट का ये कहता है हुएवर क्रिएट्स टेक्स्ट और डिजिटल इमेजेस कलेक्ट सीक ब्राउज डाउनलोड, ठीक है, पढ़ लेना आप, ये सारी चीजें करता है किसमें, इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन ऑब्सीन और इनडिसेंट और सेक्सुअली एक्सप्लिटेड मैनर shall be punished on first conviction with imprisonment or either डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, मतलब उसको जेल भी हो सकती है फाइन, और उस पर 10 लाख रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है फाइन। ये सेक्शन 67(b) कहता है। ठीक है, अब सेक्शन 67(b) को इस आर्टिकल में एलैबोरेट किया उन्होंने कहा है कि देखो भाई, जो मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया ये गलत दिया है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सेक्शन 67(b) को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 67(b) ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है, बट द हाई कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस the accused must have published, transmitted, created material depicting children in sexually explicit act or conduct। मतलब मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम इनको क्यों छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने, ठीक है, वो जो मटेरियल है उसको ना तो कहीं पब्लिश किया यूट्यूब वगैरह पे, ना उसको किसी और को ट्रांसमिट किया, ना उन्होंने खुद ये पोर्नोग्राफी वीडियो को शूट किया है। ठीक है, तो इनको केवल डाउनलोड के बेसिस पे हम पनिश नहीं कर सकते। बट इनका आईपीएस साहब का कहना है कि जो सेक्शन 67(b) है उसमें 5 क्लॉज हैं। ठीक है, उसमें 5 क्लॉज कौन से हैं, पहला तो क्लॉज ये कहता है कि आप पब्लिश या ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप पे केस हो जाएगा दर्ज। ठीक है, चिल्ड्रन का जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है उसको आप ट्रांसमिट या पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो क्लॉज है वो ये कहता है कि डाउनलोडिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, फिर सब क्लॉज सी ये कहता है कल्टिवेटिंग और इंड्यूसिंग चिल्ड्रन टू एन ऑनलाइन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मतलब आप बच्चे को उकसा रहे हो, ऑनलाइन आप बच्चों को उकसा रहे हो कि वो आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, तो वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सब क्लॉज डी ये कहता है कि चिल्ड्रन को अगर आप ऑनलाइन अब्यूज कर रहे हो तो वो भी ऑफेंस में आता है। और सेक्शन ई कहता है, सब क्लॉज ई, वो ये कहता है कि रिकॉर्डिंग चिल्ड्रन का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट रिकॉर्ड करना भी अपने आप में एक ऑफेंस है फाइन। तो द हाई कोर्ट रीच्ड इट्स जजमेंट विदाउट एनालाइजिंग ऑल ऑफ सेक्शन 67(b) एंड रीडिंग इनटू सब क्लॉज बी। मतलब हाई कोर्ट मद्रास वाला विदाउट रीडिंग सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 67(b) अपने जजमेंट पे पहुंचा, इसलिए उसने ये जजमेंट गलत दे दिया फाइन। इनका ये कहना है क्योंकि सेक्शन बी सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है डील्स विद एक्ट इंक्लूडिंग डाउनलोडिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मतलब डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो एन ऑफेंस फाइन। उसके बाद क्या हुआ, अब जो इन्होंने, ठीक है, फिर उन्होंने मतलब जो एक मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हाई कोर्ट ऑल्सो रिफर्ड दैट केरला हाई कोर्ट जो है ना उसने where it had been held that watching pornography in private space was not an offense under section 292 of IPC। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने रेफर किया कि केरला हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दी थी पिछले टाइम में कि सेक्शन 292 के तहत अगर आप अपनी प्राइवेट स्पेस में पॉर्न वॉच कर रहे हैं तो यू आर नॉट मेकिंग एन ऑफेंस, यू आर नॉट एन ऑफेंडर फाइन। तो इसी को इन्होंने कहा है कि भाई ये गलत है। जो हाई कोर्ट में केस गया था ना केरला वाले में, वो सितंबर 2023 को गया था, उसने क्या था, उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात नहीं की जा रही थी, उसमें बात की जा रही थी एडल्ट पोर्नोग्राफी की। अगर आप एडल्ट पोर्नोग्राफी अपनी प्राइवेट स्पेस में देख रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं है सेक्शन 292 के तहत। ठीक है, बट डाउनलोडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन, अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई सेक्सुअल मटेरियल या पॉर्न डाउनलोड कर रहे हैं तो इज ए क्लियरली एन ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट, वो क्लियर ऑफेंस है अंडर आईटी एक्ट, आपको इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो जो मद्रास हाई कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस देते हुए अपना जजमेंट दिया, ये गलत है क्योंकि केरला हाई कोर्ट का जजमेंट वाज रिलेटेड टू अडल्ट पोर्नोग्राफी, कि आप अडल्ट पोर्नोग्राफी डाउनलोड करके अपनी प्राइवेट स्पेस में देख सकते हो, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर है, इन्होंने ये बात क्लियर की। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखो सेक्शन 14 जो है ना पॉक्सो एक्ट का, ठीक है, मतलब वो ये कहता है कि एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस अगर आप यूज कर रहे हो
किसी बच्चे को यूज़ कर रहे हो आप पोर्नोग्राफी वीडियो शूट करने के लिए, तो आप एक ऑफेंडर हो, आपने ऑफेंस किया। बट इस केस में जो आदमी देख रहा था ना रोड साइड पे, उस केस में वो कोई वीडियो शूट तो नहीं कर रहा था, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक ऑफेंडर नहीं है। तो मतलब पॉक्सो एक्ट के साथ उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, फाइन। और सेक्शन 15 में पॉक्सो एक्ट का ये कहता है कि आपकी स्टोरेज और पोसेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल पनिश की जाएगी अगर ओनली इफ इट इज़ डन विद एन इंटेंट टू शेयर और ट्रांसमिट इट और डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट इट। मतलब अगर आपके पास कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोडेड हुई तो वो केवल पॉक्सो एक्ट के थ्रू तभी पनिश कर सकते हैं उसको जब उसका इंटेंट क्लियर हो जाए कि भाई इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट या पब्लिश या यूट्यूब वगैरह पे डालने के लिए रख रखी थी, फाइन। अगर आप पर्सनली देखने के यूज़ में कर रहे हैं तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत ऑफेंस नहीं है। वो किस एक्ट के तहत ऑफेंस है? आईटी एक्ट 2000 के तहत ऑफेंस है अंडर सेक्शन 67B, फाइन, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि देखो इन्होंने कहा कि इन एक्ट में इनकंसिस्टेंसी है, उसको रिमूव कर दो, क्योंकि सेक्शन जो 67 है ना वो सेक्शन 67A 67B ऑफ आईटी एक्ट दोनों साथ पढ़े जाते हैं, तभी वो एक कंप्लीट पिक्चर देता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट ये दोनों के अंदर स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं कि बच्चों को बचाया जा सके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलके, ठीक है, चेक भी करता रहता है कि साइबर स्पेस में मतलब ऑनलाइन स्पेस में कहीं पे चाइल्ड से रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल तो कहीं अपलोड नहीं किया जा रहा है, तो उसकी भी चेक करता रहता है और उसको भी रिमूव करता है, और जो अपलोड कर रहा है उनको सबको पनिश भी करता है, फाइन, क्लियर है। यह आर्टिकल की स्टोरी आपको क्लियर है ना। मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट गलत तरीके से दिया, इनका ये कहना है राइटर का। इन्होंने कहा है कि सेक्शन 67B में 5 क्लॉज हैं, ठीक है, जिसमें बी वाला क्लॉज है ना वो कहता है कि आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, ठीक है, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड नहीं कर सकते, इसलिए ये बंदा पनिश होना चाहिए था, फाइन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट आर्टिकल इन एडिटोरियल। नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट बैनिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। देखो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन क्या ये आर्टिकल कह रहा है, अगर फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन और सब्सिडी जो दी जा रही है फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए उनको बैन कर देना, ऐसी बात चल रही है इंटरनेशनल फोरम में, ठीक है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि कोल एलिमिनेशन ट्रीटी भी आ जाएगी 2030 तक, ठीक है। इसका रैशनल क्या है इन सब बातों चलने का? रैशनल ये है कि एक प्रोटेक्शन गैप रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2023 में, ठीक है। जस्ट योर होमवर्क इज फाइंड आउट हु पब्लिशेस दिस प्रोटेक्शन गैप रिपोर्ट। तो उसमें यह कहा गया कि जो फॉसिल फ्यूल है ना जो कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं वो, और जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में अपने 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट दे रखा है, उनके बीच में बहुत गैप है। मतलब वो अपनी फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, और जो उन्होंने कमिटमेंट की है 1.5 डिग्री सेल्सियस की, उसको अचीव करने के लिए जितना फॉसिल फ्यूल खर्च करना चाहिए और जितना वो खर्च कर रहे हैं उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो हमें एक ट्रीटी चाहिए, एक वेल बाइंडिंग ट्रीटी, जैसे कि कोल एलिमिनेशन ट्रीटी 2030 तक, ताकि ये 1.5 का एग्रीमेंट अचीव हो सके, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट ऑफ फेजिंग आउट मतलब फॉसिल फ्यूल को बिल्कुल ये ख़त्म कर देना, वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC COP26 2021 की COP26 ग्लासगो में कहा गया था, और इस टर्म का यूज़ किया गया था फेजिंग आउट वाले का, ठीक है, ठीक है, फाइन। बट द क्वेश्चन, ठीक है, आप फेज आउट करो, ठीक है, बट राइटर का ये कहना है द क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी आंसर्ड, जो क्वेश्चन आंसर करना है इंटरनेशनल प्लेयर्स को वो ये है कि जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज जो CBDR और जो NDC है उनके साथ ये आपका जो प्रपोजल है ना फेज आउट करने का और कोल एलिमिनेशन ट्रीटी लाने का, ये कैसे उनके साथ अलाइन हो रहा है ये समझाओ भाई, हमें ये समझाओ ना कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR के साथ कैसे अलाइन हो रहा है ये आपका कोल एलिमिनेशन ट्रीटी। क्योंकि आप तो CBDR क्या है कि देखो पास्ट में US, ठीक है, UK, फ्रांस वगैरह ने तो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, जितना कोल उन्हें बर्न करना था, जितना पोल्यूशन करना था सब कर लिया, अब उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड हो गई है, नाउ दे डोंट डू। बट चाइना, इंडिया वगैरह तो अभी भी डेवलपिंग फेज में ना, तो दे आर एमिटिंग मोर देन दीज ऑल कंट्रीज बिकॉज दे आर डेवलपिंग। तो उनका इन कंट्रीज का ये कहना है कि भाई देखो आपने हिस्ट्री में ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है नेचुरल रिसोर्स, ज्यादा पोल्यूशन किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है कि आप हम लोगों से पहले सबसे जल्दी फेज आउट करें अपना कोल वगैरह जितना भी आप यूज कर रहे हैं अभी, और आप नॉन फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी सोर्सेज पे स्विच ऑन करें। हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने हिस्ट्री में किया नहीं है, तो वी वांट जस्टिस इन दैट टर्म्स आल्सो, तो वी विल डू राइट नाउ, बट विद टाइम वी विल आल्सो फेज आउट, बट हम इतनी जल्दी फेज आउट नहीं कर पाएंगे, फाइन। तो इसी को कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR, फाइन।
तो इनका ये कहना है कि अगर आप डायरेक्ट ये कोल एलिमिनेशन ट्रीटी लगा दोगे कि 2030 तक सब कंट्रीज को अपनी इकोनॉमी से कोल एलिमिनेट करना है, तो ये कैसे अलाइन हो रहा है सीबीडीआर से? सीबीडीआर से कैसे ये फिट बैठ रहा है? ये तो फिर सीबीडीआर का वायलेशन हो गया। वायलेशन कैसे हो गया कि मतलब सभी कंट्रीज को करना है 2030 तक, तो आपने डेवलपिंग वर्ल्ड जो इंडिया चाइना है इनको आपने चांस ही नहीं दिया कि वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, इनको यूज करके जो आपने हिस्ट्री में कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद यूएफसीसी में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट का एम था कि आपको ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है। ठीक है, फाइन, विद अलाइनिंग विथ सीबीडीआर, मतलब सीबीडीआर का प्रिंसिपल फॉलो करके आपको इलिमिनेट करना है। फाइन, उसके बाद क्या हुआ, अब यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की इन सबकी जो डेवलप वर्ल्ड है, इनकी इकोनॉमी डेवलप कर गई है, तो इनके पास स्कोप है कि ये नॉन फॉसिल फ्यूल पे स्विच ओवर कर जाए, इनके पास इतना पैसा भी है। बट जो कंट्रीज डेवलपिंग है ना, अजरबैजान, कोंगो, नाइजीरिया वगैरह, इंडिया वगैरह, इराक वगैरह, इनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है अभी कि ये नॉन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, एनर्जी के सोर्सेज पे स्विच ऑन कर जाए एकदम से। फाइन, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है और फॉसिल फ्यूल के बारे में इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? देखो, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम स्टेट दैट कि स्टेट इज विद इन इट्स राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब स्टेट के पास राइट है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्स यूज करे जो उसकी टेरिटरी में लाई करते हैं फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइन, बट ये लॉ एक बात और कहता है कि आपको ये भी देखना है कि ये जो आपका नेचुरल रिसोर्स है वो डजंट कॉज अ सिग्निफिकेंट हार्म टू अनदर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट को सिग्निफिकेंट हार्म ना कॉज करे जब ये नेचुरल रिसोर्स ट्रांस बाउंड्री नेचर में हो। मतलब मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई नेचुरल रिसोर्स पाया गया, ठीक है, इतना बड़ा ये नेचुरल रिसोर्स का रिजर्व, सॉरी ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये इतना बड़ा नेचुरल रिजर्व पाया गया, ठीक है, तो ये ट्रांस बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर इंडिया इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है ना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसको ऐसे एक्सप्लॉइट करना है कि जो अदर कंट्री है उस पर इफेक्ट ना पड़े। फाइन, फाइन, फिर ये ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करनी है। फाइन, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2010 में एक पल्प मील केस आया था, उसके बाद उसने कहा था कि ट्रांस बाउंड्री जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है कि दूसरी कंट्री की इन्वायरमेंट कितनी हार्म हो रही है इस वजह से। ठीक है, फाइन, तो ये इंटरनेशनल लॉ कहता है फॉसिल फ्यूल के बारे में। फाइन, उसके बाद इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि डिस्पाइट इंडियाज नोटेबल प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, फॉसिल फ्यूल कंटिन्यूज टू डोमिनेट इंडियाज पावर सेक्टर, मतलब अभी भी हमारा पावर सेक्टर मोस्टली फॉसिल फ्यूल ड्रिवन है। नियरली 3.6 मिलियन, मतलब 36 लाख लोग 150 डिस्ट्रिक्ट में फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी पे, ठीक है, डिपेंडेंट है। अगर आप इसको फेज आउट कर दोगे, जो इंटरनेशनल फोरम में बात चल रही है, तो इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फाइन, यही इस आर्टिकल में कहा है। तो इंडिया कह रहा है कि हमें सीबीडीआर के साथ चलना है, एंड इंडिया अपोज्ड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कोप 26 की जो मीटिंग हुई थी उसमें उसने अपोज किया था, इंडिया ने क्या अपोज किया था कि आपने जो लैंग्वेज यूज की ना फेजिंग आउट, इसको आप हटा के फेजिंग डाउन यूज करो। फेजिंग डाउन ऑफ कोल, नॉट फेजिंग आउट ऑफ कोल। वी विल नॉट फेज आउट, वी विल फेज डाउन विद टाइम एंड ओवर अ टाइम, ठीक है, स्लोली वी विल फेज आउट फुली, बट इनिशियली वी विल फेज डाउन, ठीक है, और वो अलाइन करेगा सीबीडीआर के साथ। फाइन, आर्टिकल इज क्लियर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन जो आर्टिकल आया है वो है रोड मैप फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। दिस आई हैव डिस्कस्ड वेरी इलैबोरेटली इन अ हिंदू एनालिसिस वीडियो, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देखना, फिस्कल कंसोलिडेशन करके एक लिंक पड़ी होगी आगे, ठीक है, और साथ में मैंने टाइमलाइन भी डाली है, तो मैंने उसमें डिस्कस किया है और बजट में भी डिस्कस किया है। सो नॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या क्या मेंशन है मैं आपको बता दूँ। टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी मेंशन्ड है जो कि 1.33 है, पूरा आर्टिकल लोडेड विद इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स है, कोई एनालिसिस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि 11.1 कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी बजट में, ये मेंशन था। फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.1% ले जाने 2024-25 तक, ठीक है। और FRBM एक्ट में डेट टू जीडीपी रेशियो गवर्नमेंट को मेंटेन करना है 60%, ठीक है, तो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट, हालांकि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो फिस्कल कंसोलिडेशन से रिलेटेड रोड मैप है उसको मैंने डिस्कस किया, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन सी इट। फाइन, उसके बाद क्या था, 20,000 FCRA लाइसेंस कैंसिल किए हैं जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। फाइन, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कैंसिल हुए हैं। फाइन, तो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है FCRA से रिलेटेड। व्हाट इज FCRA? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मतलब जो NGOs वगैरह है ना, उनमें जो बाहर से पैसा आता है ना, उसको ये एक्ट रेगुलेट करता है, उसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो उसी के बारे में डेटा दिया गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है दिल्ली में,
उसके बाद कर्नाटका में आता है, ठीक है, रिलेटेड टू एनजीओज को जो फॉरेन कंट्रीज फंड करती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली के पास आता है, ठीक है, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, ठीक है, फिर आफ्टर दैट महाराष्ट्र, ठीक है। ये 4-5 नाम याद रख लो आप प्री के लिए, बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट, फाइन। Okay, so text and context we have discussed, editorial we have discussed. Now let's switch on to the Hindu news from the front article, ठीक है। फ्रंट पेज से आज फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ आई है? अपोजिशन इज क्रिएटिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड, पीएम मोदी ने कहा है ड्यूरिंग हिज स्पीच इन राज्यसभा, ठीक है। उनका ये कहना था कि स्टेट्स डेवलपमेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट इज आवर मंत्रा, ठीक है, मतलब स्टेट का डेवलपमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारा मंत्र है। एंड वी एनकरेज कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सबका साथ सबका विकास इज नॉट ओनली अ स्लोगन बट इट इज अ इंडिकेटर ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ऐसा पीएम मोदी का कहना था राज्यसभा में, ठीक है। बाकी पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं ये अपोजिशन वाले? इसलिए कहा क्योंकि जो अपोजिशन ऑफ नॉर्थ साउथ जो कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही है ना, कहाँ पे? दिल्ली में। अभी जो 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ, ये देखिए, कर्नाटका लीडर्स हिट आउट एट सेंटर एज दे स्टेज प्रोटेस्ट इन दिल्ली, फाइन। तो उसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि दे वांट टू क्रिएट अ नॉर्थ साउथ डिवाइड, कि भाई सदर्न स्टेट्स को कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, सेंटर देती है इन कंपैरिजन टू नॉर्थर्न स्टेट्स। तो ये कर्नाटका का प्रोटेस्ट इज वांट टू क्रिएट नॉर्थ साउथ डिवाइड, ठीक है। यही मेंशन था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल का जस्ट मैंने आपको दे दिया, फाइन। बाकी ऑन फ्रंट पेज इज नथिंग इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। ऑन पेज 2 सिटी नथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट, बिलीव मी, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट। ऑन पेज 3 एज वेल ऑन स्टेट्स नथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट। ऑन पेज 4 स्टेट में एक ये जो मिक्स्ड रिएक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, किसके लिए? जो सेंटर ने डिसीजन लिया ना इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस करने के लिए, उस पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वो उसमें से कुछ खुश हैं कि चलो वी एग्री विद द डिसीजन ऑफ सेंटर टू फेंस म्यांमार बॉर्डर, बट सम आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो इसके बारे में अभी एक वीडियो प्ले होने जा रहा है जिसका नाम है इंडिया म्यांमार फ्री मूवमेंट रेजीम, ठीक है, वो देखिए आप। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट जो मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ उसमें सब कुछ मेंशन्ड है, हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक, फाइन। उसको देखिएगा, प्ले होगा, ओके। सो यू हैव वॉच्ड द वीडियो। Have you ever pondered the complexity of borders and the conflicts they can ignite? In the early 19th century, the Treaty of Yandabu in 1826 fashioned the modern-day border between India and Myanmar. This seemingly arbitrary line on a map had profound consequences for the people living there. It divided communities of the same ethnicity and culture. The Nagas of Nagaland and Manipur, along with the Kuki-Chin Mizo communities of Manipur and Mizoram, found themselves split between two nations, without their consent. Imagine waking up one day to find a border running through your backyard, your community, your identity. These invisible lines, drawn in the corridors of power, shaped the lives of thousands, dictating who they could visit, where they could work, and even who they were in the eyes of the world. This historical backdrop sets the stage for the contemporary issues we face today. Now, what if I told you that people living on either side of this border could travel up to 16 kilometers into each other's country without a visa? Yes, you heard that right. Introduced in the year 2018, the Free Movement Regime, or FMR, was a part of the Narendra Modi government's Act East policy. This policy aimed at improving relations with the nations of Southeast Asia, but its implementation saw an almost year-long delay, primarily due to the Rohingya refugee crisis that began in August 2017. The FMR allowed border residents to venture up to 16 kilometers into the neighboring country without requiring a visa. All they needed was a border pass, valid for a year, which permitted them to stay in the other country for about 2 weeks per visit. But this cross-border freedom, however, has not been without its problems. Could a policy aimed at fostering unity and cooperation also be a breeding ground for conflict and crime? It's a question many are asking as we delve into the challenges posed by the free movement regime. Security forces have been wrestling for decades with extremist groups conducting hit-and-run operations from concealed bases in the Chin and Sagaing regions of Myanmar. The ease of cross-border movement, even before the FMR was established,
was often flagged for promoting drug trafficking and the illegal export of wildlife body parts. In May of 2023, a conflict erupted between the majority Meitei and the tribal Kuki-Zo communities in Manipur, a conflict directly linked to the free movement of Myanmar nationals into India. It's a stark reminder that policies designed to bridge gaps can sometimes widen them instead. In light of these challenges, the FMR is now under reconsideration. So, what happens when borders, once permeable, begin to close up again? With the onset of the COVID-19 pandemic, the free movement regime was suspended in April of 2020. This suspension was extended following the military coup in Myanmar in February of 2021. The changing political landscape has had dire consequences. The civil war in Myanmar forced an estimated 40,000 people into Mizoram, a state that welcomed them due to their ethnic affiliation. However, not all regions were as welcoming. The Manipur government, for instance, staunchly opposed the FMR. In September 2023, Manipur's chief minister, Nongthombam Biren Singh, attributed ethnic violence in the state to the free movement of Myanmar nationals into India and urged the Ministry of Home Affairs to put an end to the FMR. As we can see, the India-Myanmar border issue is a complex web of historical ties, current political situations, and future uncertainties. Borders may be lines on a map, but they are also lines that connect and divide people, cultures, and nations. We've explored the historical context of the India-Myanmar border, the introduction and challenges of the free movement regime, and the current situation. We've seen how policies like the FMR can have unintended consequences, impacting security, migration, and inter-ethnic relations. As we continue to grapple with these issues, let us remember that at the heart of the matter are people, their lives, and their homes. जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर है ना, इन्होंने तो डिसीजन वेलकम किया है कि भाई बॉर्डर को फेंस कर दो म्यांमार के साथ, बट मिजोरम एंड नागालैंड जो कंट्री स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो अगेंस्ट हैं इसके. ठीक है, बस यही आर्टिकल का जिस्ट है. फाइन, बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस पेज. वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज त्रिपुरा बोर्ड ने अलाउ कर दिया है कोक बोरोक, ठीक है, को लैंग्वेज को लिखना इन रोमन स्क्रिप्ट इन देयर एग्जामिनेशन. तो कोक बोरोक इज अ लैंग्वेज रिलेटेड टू त्रिपुरा. ठीक है, प्री के लिए याद रखना है. फाइन, रेस्ट इज नथिंग इंपॉर्टेंट. ऑन पेज 5 स्टेट्स, ओके, निर्मला सीतारमन इज ऑल्सो, ठीक है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही है ना, कहाँ पे, दिल्ली में, वो इनएडिक्वेट है क्योंकि टैक्स डेवल्यूशन जो है ना, वो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही कर रही है गवर्नमेंट. ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है. फाइन, ठीक है, ये कहना है इनका. बाकी रेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. हाँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो एक न्यूज़ ये है कि 390 ईयर ओल्ड एक लैंप पोस्ट मिली है. दिस इज द लैंप पोस्ट. फाइन, ये 390 साल पुरानी है. कहाँ पे मिली है? नालगोंडा, तेलंगाना में. ठीक है, नालगोंडा तेलंगाना में मिली है ये. ठीक है, इसको कहते हैं दीप स्तंभम. ठीक है, दीप स्तंभम लैंप पोस्ट, और ये 390 साल पुरानी है. किस रिवर की कोस्ट पे मिली है? रिवर कृष्णा की कोस्ट पे मिली है, तेलंगाना में, नालगोंडा जिले में. फाइन, ये 20 फुट लंबी है. ठीक है, और इस पर मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी मिले. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जब आप किसी भी पत्थर की दीवार या कुछ भी हो ना, उस पर जब आप गड़ा गड़ा के कुछ नाम लिख देते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं इंस्क्रिप्शन. फाइन, उसके बाद एक तो ध्वजा स्तंभम फ्लैग पोल मिला था, वो पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है. ठीक है, और लैम्प पोस्ट आर रेयरली सीन इन डेक्कन. देखो, जो फ्लैग पोस्ट है जिसमें फ्लैग वगैरह फहराया जाता है ना, ध्वजा, वो तो टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया की टेम्पल आर्किटेक्चर में प्रोमिनेंट है. बट ये जो लैंप पोस्ट है ये बहुत रेयरली मिलता है डेक्कन में. ठीक है, सदर्न स्टेट में. ठीक है, इंक्लूडिंग टेम्पल. फाइन, तो बेस्ड ऑन इंस्क्रिप्शन, जो इस लैंप पोस्ट में इंस्क्रिप्शन मिला है, उसके बेसिस पे, ठीक है, ये पता चला है कि ये जो है ना, ये शिवा टेम्पल से रिलेटेड लैंप पोस्ट है. ठीक है, दिस लैंप पोस्ट इज रिलेटेड टू शिवा टेम्पल, डेटेड बैक टू 1635 इसकी डेट निकाली गई, और इंस्क्रिप्शन तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. ठीक है, तो इट इज़ डेडिकेटेड टू काशी विश्वनाथ. ठीक है, उसके बाद ये भी अनुमान लगाया है कि अगर ये लैंप पोस्ट रिवर के बगल में है तो शायद ये लाइट हाउस के तौर पे भी यूज़ होता होगा, जो रिवर में ट्रेड वगैरह होती है. ठीक है, फाइन, क्लियर है, बस इतना इंपॉर्टेंट है. फाइन, ठीक है. देन एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड, ओपिनियन वी हैव डिस्कस्ड, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. फाइन,
ओके फिर पेज 10 पे जो न्यूज़ है कि उत्तराखंड असेंबली ने पास कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं है, बट आपको पास्ट जानना है इसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा उत्तराखंड यूसीसी करके, ठीक है, और टाइमलाइन डाल दूंगा, तो आप उस हिंदू एनालिसिस को देख लेना उसी टाइमलाइन पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पे। नेक्स्ट पेज ऑल्सो पेज 11, नो इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऑन पेज 10 सॉरी 12 वन इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको होमोजीनियस ग्रुप नहीं मान सकते ना आप। होमोजीनियस ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, मतलब उसमें ज़्यादा कास्ट में वेरिएशन ना हो, ठीक है। होमोजीनियस मतलब उसके कल्चरल प्रैक्टिसेस सारे सेम हो, ठीक है, और कुछ मेजर डिफरेंसेस ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी को, शेड्यूल कास्ट को आप एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं मान सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं मान सकते हो? तो उनका ये कहना था शेड्यूल कास्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ होमोजीनियस ग्रुप फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन बिकॉज these SCs, these शेड्यूल कास्ट ऑल्सो इंक्लूड सपेरा, ठीक है, बाजीगर, बतवाल, तो इन सब ये शेड्यूल कास्ट के अंदर ये सब कास्ट भी आती हैं, ठीक है ना। तो जब ये सब कास्ट आती हैं और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनके ऑक्यूपेशन वगैरह से रिलेटेड, तो ये तो एक हेट्रोजेनिटी वाला ग्रुप हुआ ना। होमोजीनियस कैसे हो गया इतनी डाली डिफरेंस के बाद भी? तो ये एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है, ठीक है। क्लियर है? तो इस बात को करते हुए, ठीक है, और इन्होंने एक रीज़न और दिया, किसने? सीजीआई ने हमारे, कि द स्टेटस ऑफ एवरी कास्ट मे नॉट बी द सेम इन द सोशल हायरार्की, ठीक है। मतलब जो एससीज में ग्रुप है ना, पूरा एससी में जो ग्रुप है जितने भी, उनकी सेम सोशल हायरार्की नहीं होगी, उन सब कास्ट की सेम सोशल हायरार्की नहीं होगी, तो इसलिए होमोजीनियस ग्रुप क्रिएट उनको नहीं मान सकते, ठीक है। और ये जब डिसीजन दिया उन्होंने, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक डिसीजन दिया था ना, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट इज अ होमोजीनियस ग्रुप एंड सब क्लासिफिकेशन वुड बी अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। उसको उन्होंने अभी ओवरटर्न कर दिया है, ठीक है, मतलब उसको बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप एससी को माना जा सकता है, एससी शेड्यूल कास्ट इज नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप, तो सब क्लासिफिकेशन इज अ पॉसिबिलिटी। फाइन, ठीक है। बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट ऑन दिस पेज। एट वर्ल्ड न्यूज़ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इजराइल के पीएम ने रिजेक्ट कर दिया हमास का जो ट्रूस टर्म था ना। हमास ने लड़ाई रोकने के लिए कुछ टर्म्स रखे थे इसराइल के सामने, जो कि इसराइल के पीएम ने मना कर दिया है कि वी विल नॉट एग्री टू दिस, वी वांट टू फाइट अप टिल वी अटेन अ एब्सोल्यूट विक्ट्री, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर मालदीव्स हाई रिस्क पे हैं, किसके? डेट ट्रैप के, ऐसा आईएमएफ ने वार्न किया है। फाइन, नथिंग इज इंपॉर्टेंट गिवन इन दिस आर्टिकल, ठीक है। यह पेज भी खत्म हुआ। पेज 14 पे इकोनॉमी में जो न्यूज़ है वो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज नहीं आई है, तो यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट्स सेक्शन डिस्कस करने की। फाइन, तो वी हैव कंप्लीटेड, जस्ट अ मिनट, ओके, सो वी हैव कंप्लीट, दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट्स सेक्शन, तो वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन, ठीक है, टुडेज डिस्कशन वी हैव कंप्लीटेड, दिस इज साइंस सेक्शन। फाइन, तो वी हैव कंप्लीटेड द टुडेज डिस्कशन, ठीक है। आई होप आपने सेशन एंड तक वॉच किया होगा। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी साइड, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू गाइस।